ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਤ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 1 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ, ਸੁਤੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਡਿੱਠ ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹੋਂ ਖਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਨਿਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਦਰਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦਾਸ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ, ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਈਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਤੈਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਨਸੈਪਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂ। ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ तमाम ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਰਵੇ, ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਚਲ, ਉਹਦਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਕੜਿਆ, ਤਰੀਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਚਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत, और ध्यान में ना ध्यान रहे हो, गत में ना गत रही, पत में ना पत है। मैनू तो कोई होशोवाश ही ना रहा, मैं कपड़ा की पकड़ना सी। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह ने भी अपने सुपने का जिक्र किया। वो कहते सुपने विच तुसी मिले सानू, थोड़ी वित सी। कहन लगे चुस्त कदम और लम्मी पुलांग पट के मैं भज के कोल गया भी जफ्फी च लै ला, बगलगीर कर ला, गलवकड़ी च लै ला। सुपने विच तुसी मिले सानू, असी ता गलवकड़ी पाई
ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਥੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਸਾਡੀ ਕੰਬ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਨਾਮਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਸਾਡੀ ਕੰਬ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੌ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀਂਦਰੇ ਆ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕਲਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੜਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਪਰਖ ਮੁਖ ਅਲਾਵਣ ਥੋਥਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਚੰਭਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਜੀਭ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਅਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? 8। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ 8 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ 9ਵੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 10ਵੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਆਦਿਆਂ ਬਚਨ, ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਪਛਾਣ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਪਰਖ ਮੁਖ ਅਲਾਵਣ ਥੋਥਰਾ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਖ। ਮੁਖ ਅਲਾਵਣ ਸਿਰਫ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਥੋਥਰਾ ਇਹ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਜੀ ਬੈਠੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਨਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਾਂਗੀ। ਆਮੂਮਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਕਰਕੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਸਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਕਰਦੀ, ਕਰਰ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀਪ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਸੀਪਾ ਨਹੀਂ। ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਪਾ। ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਰੀਲ, ਉਹਦੇ 2-3 ਮੋੜ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੂਈ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਰੀਲ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਪਾ।
फिर आख्या फिरकी का धागा ना मुक गया होवे, उठा के वेखी फिरकी बाहर कड्डी, कहन लगे ओहो फिरकी ते धागा ही कोई नहीं। कपड़ा कला उपरला धागा नहीं सिउंदा, एक थल्लियों फिरकी का धागा भी हुंदा है। उपरला और थल्ले वाला दोवें धागे खरिंगली मारते जाते हैं, कपड़ा तां सीपदा। अदरवाइज उपरला धागा होवे थल्ले वाला ना होवे, कपड़ा नहीं सीपेगा। ईवन थल्ले वाला है उपरला नहीं, कपड़ा फिर भी नहीं सीपेगा। जीभ उपरला धागा है, मन फिरकी वाला धागा है। मर्ज कहते फिरकी तो मुक्की पई और व्हील नूं घुमाई जाना, कपड़ा कित्थों सीपे। ये तो रोज सवेरे उठ के पढ़ना, तिथे सीतो सीता, पर सीता ते तू है ही कोई नहीं। तू धागा ही नहीं चैक किया, फिरकी का धागा मुक्का है, उतले धागे नूं वेखी जाना, मशीन नूं भजाई जाना और कपड़ा सीपदा को नहींगा। इनू हजूर कहंदे ने सज्जन सच परख। वो सज्जन अकाल पुरख नूं अपने मन दे विच परख। एक पड़चोल करया कर जदों सिमरन च बैठना है, भी सिमरन मेरा मन करदा है कि नहीं करदा। ये तो नहीं भी रसना वागरू वागरू कर रही है और मन होर पासे भज्जा फिरदा है। कई बार पता की हुंदा, हाथ च माला फड़ी हुंदी है, दे मन के ते मन काठा। माला हाथ च घूम रही है, जीभ मूँह च घूम रही है और मन दिशा दिशावां वाल घूम रहा, फिर सिमरन काहदा है। कबीर माला तो कर मैं फिरै, बीजक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब दे बोल नहीं मैनूं खिमा कर देना, ये कबीर पंथियां दा ग्रंथ बीजक ग्रंथ। कबीर माला तो कर मैं फिरै, जीभ फिरै मुख माहे, मनुआ तो दह दिस फिरै, ये तो सिमरन ना है। मनुआ तो दह दिस फिरै, ये तो सिमरन ना है। हजूर कहंदे पड़चोल करया कर भी कली जीभ ही घूम रही है, हाथ च माला ही घूम रही है कि मन विच भी परमात्मा की याद आ रही है। जिन्होंने समझ आई उन्होंने तो कह दिता ऐसा नाम रतन निर्मोलक बेशकीमती है। पुण्य पदार्थ पाया, कोई पूर्वले जन्म चंगा कर्म होया सी तां ये सिमरन की दात मिली, अदरवाइज नहीं मिलती। फिर अनक जतन कर हिरदे राखिया। जदों कोई जपे ना, वो जिन्ना मर्जी लुका ले फिर वो लुक नहीं सकता। मत्थे ही प्रगट थिया, ओदी रहनी, ओदी बहनी, ओदा बोलना, ओदा छूना पूरी चरनाट छेड़ दिंदा है, बशर्ते कि होवे सच्ची मुच्ची दा, पखंडी ना होवे। महाराज कहंदे पुण्य पदार्थ पाया, अनक जतन कर हिरदे राखिया, रतन नाम रूपी रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मठियाई। फिर पता की कहंदे, रसना रमत। मैं ते दूं दी गल कीती है ना, मैं ते जीभ दी ते मन दी गल कीती है, बाणीकार कादी गल कर दे, जरा ध्यान दिया जे। रसना रमत, जदों रसना राम च रवदी है। सुनत सुख सरवना, रसना नूं जप के स्वाद आउंदा है, कन्ना नूं सुन सुन के सुख आउंदा है। चित चेते सुख होई, चित विच ओहदा चेता करिए तो चित भी सुखी हुंदा है। वेखो जिस भवन विच रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं, चानन नहीं, लाइट नहीं, उत्थे हनेरे नूं सदना नहीं पैंदा, सदना नहीं पैंदा, वो खुद बखुद हुंदा है। और जिस रूम विच, कमरे विच, भवन विच, इमारत विच, बिल्डिंग विच रोशनी होवे, बल्ब, ट्यूब लाइट, सूरज की रोशनी इत्यादि होवे, उतों हनेरे नूं ये नहीं कहना पैंदा भी हनेरिया तू बाहर निकल जा, वो आपे ही बाहर निकल जाता। जिस चित्त विच ओहदा चेता है उत्थे सुख नाल ही आ जाता है। जिस चित्त विच ओहदा चेता नहीं, उत्थे चिंता नूं सदना नहीं पैंदा, चिंता पक्के डेरे ला के बैठ जाती। इस वास्ते सुखी होने का एक सूत्र तरीका है बई गाहे बगाहे उन्होंने चेता करते रहिए। जिथे वो चित्त आवे, फिर महाराज कहते तू चित्त आए सदा दयाला, फिर तेरी दया दे पात्र बन जीदा। रसना रमत सुनत सुख सरवना, चित चेते सुख होई, कौ भीखण दोए नयन संतोखे। अखां भी तृप्त हो जांदियां ने, हुण जै देखा तै सोई। इनू गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह रहमत करदे ते कहंदे अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवनी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्तियां दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वथ दे, जग में उत्तम कांडियां विरले।
ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸਾ तेरा सब परिवार चढ़ाया बेड़ा, वो इस परिवार की गल कर रहे होंगे ने। दोवे कन दोवे अखा नासका रसना त्वचा गुप्तांग आदि। फिर वो कहते दीन दयाल भरोसा तेरा, दीन दयाल भरोसा तेरा, दीन दे दीन दयाल भरोसा तेरा, दीन दयाल भरोसा तेरा। सब परिवार चढ़ाया बेड़ा, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब इस वास्ते गुरु सवारियो अज उचेचे तौर पर हुक्म है सिखा तू रसना नाल गुरमंत्र जपना है, मूल मंत्र जपना है, बाणी का पाठ करना है। आ अज एक गल गुरुद्वारे पल्ले बन के जा भी जिवें मैं रसना नाल जुड़ना उवें मैं सुरत करके भी जुड़ना है, उवें मैं मन करके भी जुड़ना है, उवें मैं ध्यान करके भी जुड़ना है। क्योंकि गुर सभा एव ना पाइए, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिले जां मन रहे हजूर। जिन्हां दे मन हजूर सन और तन दूर सन उन्हां नूं हाज़र, जिन्हां दे मन दूर सन ते तन हजूर सन उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह ने गैर हाज़र कह दिता सी। हाज़र गैर हाज़र ते गैर हाज़र हाज़र हो गए सन, क्योंकि इकनां दी तन दी हाज़री सी, मन दी गैर हाज़री सी। इकनां दी तन दी गैर हाज़री सी ते मन दी हाज़री सी। हजूर ने मन दी हाज़री वालियां नूं हाज़र और मन दी गैर हाज़री वालियां नूं गैर हाज़र कर दिता सी, एबसेंट लगा दी सी। इस वास्ते बड़ा बारीक नुकता है गुरमत का भी ये तन का विषय नहीं। ये ठीक है भी तन दे नाल ही मन आउंदा है, तन नूं गुरु दरबार च लियाउणा प्राइमरी गल है, पर यह भी गल ठीक है भी सारी खेड मन दी है, मन दी। तो आओ गुरु सवारियो, हजूर फरमान कर रहे ने मंज मजाहू लख, अपने मन दे अंदर ओनू वेख, तुदों दूर ना सो पिरी, तेरा प्यारा तेथों दूर नहीं गा। कौर रविदास हाथ पै नेड़े, साडा हाथ जेड़ा जिन्ना साडे तो नेड़े है ना, कहंदे रब उदों भी नेड़े है, सहजे होए सो होई। पौड़ी धरत आकाश पाताल है, चंद सूर विनाशी। हजूर कहंदे जिहड़ी धरती है, आकाश है, पाताल है, चंद्रमा है और सूरज है, ये सारे नाशवंत ने। भावें मूल रूप च मेरा विषय साइंस का तो नहीं, पर मैं तुहानूं अर्ज कर दिया भी अजोकी साइंस ने सानू बाकायदा कैलकुलेशन करके दस दिता भी ये सूरज बुढ़ा है जिहदी रोशनी च असीं जी रहे हैं। सूरज तो बिना साडे सौर मंडल का अंत हो जाएगा। पलक झलक विच ये जिहड़ा सौर मंडल है, इहदा एक परिवार है जिहदे विच सूरज है, चंद्रमा है, साडी धरती है और कुछ जिस तरह साडी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, कुछ उपग्रह साडी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और ये सिलसिला अगां दी अगां चलता जाता है। ये सारे निज़ाम नूं वो अपनी बोली सौर मंडल कहते हैं। सूरज दे नेस्तो नाबूत होने नाल ना सिर्फ साडा सौर मंडल डिस्टर्ब होगा, पूरे ब्रह्मंड में एक बार खलल बल्लल मचेगी। और ये सच है कि इस तरह पहला कई बारी हो चुका है, कई बार पसरियो पासारा, फिर दोबारा ब्रह्मंड क्रिएट होंदा है। ये ग्रह उपग्रह दोबारा क्रिएट होंदे ने। और अजोकी साइंस इत्थों तक सानू दस दिता है भी इस सूरज की उम्र इतनी रहेगी, तो चिंता करने की नहीं लोड़, उहदे विच असीं अजे कई 100 जन्म लै सकते हैं। पर उन्हां दी कैलकुलेशन मुताबक ये बुढ़ा है, ये बिल्कुल कबर च लत्तां लमका के बैठा है। और हजूर ने 3-4 सदियां पहला 5 सदियां पहला लिख दिता ये सूरज नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, धरती नेस्तो नाबूत होके ब्रह्मंड विच बेर बेर होके खिलर जाएगी, 4 चफेरे धूड़ ही धूड़ हो जाएगी।
और जदों जिस धरती ते तू रहना है भलिया वो धरती ही नहीं रहनी तो तू कित्थों रह जाएगा। तू बड़ियां डूंगियां डूंगियां नीयां पुट्टना, बड़े पक्के वसेबे करना। मैं तेरा दिमाग ठीक करना चाहना, जिस पृथ्वी ते तू रह रहा है पक्का वसेबा समझ रहा है, ये पृथ्वी ही नहीं रहनी तो तू कित्थों रह जाएगा। धरत आकाश पाताल है, चंद सूर विनाशी, विनाश हो जाएंगे। बादशाह शाह उमराव खान, बादशाह के भाव अर्थ स्पष्ट ने। शाह जिहड़ा मायाधारी बंदा है, उमराव खान, खान दे अखरी अर्थ हुंदे ने जायदादां दे मालक। वैसे असी जिस मर्जी सेंस च लईए, पर जो कोश विच खान दे अर्थ ने जायदादां दे मालक, धनाड़ बंदे। बादशाह शाह उमराव खान ढा डेरे जासी, ये सारे अपने डेरे ढा के इत्थों चले जाणगे, भाव इन्हां दे डेरे भी ढाए जाणगे। रंग तुंग, रंग मैंने रंक, रंक मैंने गरीब, तुंग मैंने अमीर। की गरीब ते की अमीर। हजूर पंचम पातशाह बख्शिश कर रहे ने, रंग तुंग गरीब भाव स्पष्ट ने, और मस्त दे अर्थ ने जेड़े माया दे विच हंकारी हो गए ने, जिन्होंने अपनी माया का हंकार है। सब लोग सिदासी, इथों सारे चले जाणगे, इथों सारे सिधा जाणगे। वाहिगुरू समत बख्शो। तो साध संगत जरूर बेनती प्रवान करिया करो, एकाग्रता बख्शिश करिया करो। बच्चे नूं तुसीं पकड़ भी सकते हो बोलण दी बजाए, तो बड़ी मुश्किल नाल बड़ी एनर्जी खर्च करके बेनतियां कर करके माहौल सिरजिया जाता है। इस वास्ते मेरी सनिमर बेनती है, और मैं ये भी बेनती करदियां भी इस जंग विच मैं कल्ला वां, मैनू कोई साथ नहीं। हर बंदा मैनू इस पक्षों भैड़ा ही कहता है, इत्थों तक कह दिता गया भी ना क्या करो। पर यह है भी जे इत्थे असी इस तरह नहीं कंट्रोल करांगे तो फिर बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद हो जाएगा। तो ठीक है भी थोड़ा पेंडू माहौल है, संगत शहरी भी आउंदी है, पेंडू भी आउंदी है, पर वो बेनती करन दे नाल ही असर होना है। इस वास्ते मेरी सनिमर बेनती है भी तुसी जरूर गुरुद्वारे भी आविया करो। इसदा मतलब ये नहीं भी गुस्सा करके गुरुद्वारे ही नहीं आउणा, पर यह विदत रवे बई घंटा अद्धा घंटा पौना घंटा ला के जिहड़ा माहौल बनाया है वो साडी एक दी गुस्ताखी नाल जे वो खराब हुंदा है, तो जिहड़ी गल दा गुस्सा करदे हो ये है भी मैं फिर कहना हुन्ना भी फिर कोई लाभ नहीं गा, फायदा नहीं गा, कई बार नुकसान भी हो जाता, क्योंकि असी माहौल नूं खराब किया है। गुरबाणी का प्रवाह चल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, और ये जो मैं कहना है बिल्कुल यथार्थ है, विचार की जा सकती, लाभ नहीं नुकसान है। तो इस गल का गुस्सा किया जाता भी ज्ञान जी ना क्या करो, इदा कराया करो, उदा कराया करो। मैं भी आदत तो मजबूर हाँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है भी जिस तरह मैं तनदेही नाल कर रहा उस तरह मैनू रिस्पॉन्स मिले, और तुसीं देंदे हो। इकाकारा कोई इस तरह की घटना होंदी, और मेरी उन्होंने भी बेनती है भी गुरु की खुशी लैन वास्ते आविया करो, संगत की प्रसन्नता लैन वास्ते आविया करो, और जरूर कंट्रोल करिया करो। आओ एक बारी फिर खेचल करो तो सारी संगत प्यार नाल आखो सतनाम श्री। हजूर कहते कि गरीब की अमीर की माया विच मसते हुए सारे इत्थों उठ जाणगे। काजी शेख मशायका, काजी शेख लोग और मशायका धार्मिक आगू सभे उठ जासी। पीर पैगंबर औलीए, इन्हां विचों कोई भी स्थिर नहीं, सब चलाएमान ने। को थिर ना रहा सी। रोज़ा बांग निवाज कतेब की रोज़े रखण वाले, बांगां देण वाले, नमाजां पढ़न वाले, कतेबां पढ़न वाले सभे बिन बुझे सब जासी। जिन्हां ने पढ़िया है और जिन्हां ने नहीं पढ़िया ये सारे इत्थों रुखसत हो जाणगे। इत्थों तक 1,84 मेदनी जिहड़ी 84 लाख जून है धरती दे उत्ते, मेदनी दे उत्ते, हजूर कहंदे सब आवे जासी, सारे आउंदे ने इत्थों चले जाण वास्ते। एक शब्द हजूर गुरु नानक साहब दा आप जी की नज़र करा इस संदर्भ विच। हजूर कहंदे भी ये धरती जिहड़ी है ये इस तरह है भी जिस तरह पिंडां दे विच सारियां दी जमीन चों हिस्से वरती थोड़ी थोड़ी जमीन कट के
तो फिर 20 50 100 200 किला जमीन छड्ड दित्ती जाती और उन्होंने कहते भी ये सांझी जमीन है। जदों पैलियां बीजियां जान विचारे पशु कित्थे जान, इन्हां पशुआं नूं फिर सारे चारन वास्ते इत्थे लै आउणे। सांझी जमीन है, उन्होंने पंचायती भी कह देंदे, शामलात भी कह देंदे, गऊ चरांद भी कह देंदे और गोयल भी कह देंदे। और जिहड़ी सांझी जमीन हुंदी है ना, उत्थे पशु चारदियां बारिश आ जाए, धुप्प होवे, कोई बंदा कमरे नहीं पांदा भी सारी दोपहर इत्थे मर जाने जी, कमरा ही पा लईए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है मेरी जमीन नहीं, सांझी जमीन है, ये ते मैं उसारी नहीं कर सकता। मर्ज कहते सारी पृथ्वी गोयल है, वो जमीन जिथे गुजर लोग पशु चारन वास्ते आउंदे ने, छेड़ू डंगर चारन वास्ते आउंदे ने। महाराज कहते गोयल आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार। उथे डंफ की करना है, पसार की करना है। बंदिया ये धरती भी गोयल है, ये सांझी जगह है जिथे वसेबा नहीं करना चाहिए, भाव ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए भी मैं इत्थे बैठे ही रहना है। मोलत पुन्नी, जदों मोलत पुग गई ना, चलना इथों चलना पैना। इसलिए तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव प्यार, क्या थोड़ी बात गुमान। असी थोड़ी जी गल ते हंकार कर लेने ना। कहा नर गर्बस थोड़ी बात, मन 10 नाज, टका 4 गांठी, एंडो टेडो जात। की होया कि 4 मन अनाज वध हो गया, तेरे पल्ले 4 पैसे वध आ गए ने, तेरी ते तोर ही बदल गई है। बहुत प्रताप गांव 100 तू 100 पिंडां दा मालक है और 2 लाख रुपया उन्हां जमानियां च ओदी मामला बन जाता सी। अज ते 2 लाख आम है ना, उदों 2 लाख अज दे 2 अरब वर्गा होना है। 2 लाख टका बरात, पर हजूर कहते दिवस 4 की करो सहबी। ये 4 दिन की मालकी है। जैसे बन हर पात, ना को ले आयो ये धन ते ना को ले जात। रावण हूं ते अदक छत्रपत खिन में गए, बलात हर के संत सदा थिर पूजो, जो हर नाम जपात। कहा नर गर्भस थोड़ी बात। मर्ज कहते जैसे गोयल आया गोयली, क्या तिस डंप पसार, मोलत पुन्नी चलना, तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव प्यार, क्या थोड़ी बात गुमान। फिर कहते जैसे रैन परौने, उठ चल से प्रभात। परौना 1 दिन नहीं रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन, आखिर ते उन्हें अपने घर जाना ही। इसे तरह तू पृथ्वी ते परौना है, आया है जान वास्ते, पर तू पक्का वसेबा करके बह गया। भाव तेनू भुल गया है भी मैं जाना है। सेंस ये है कि जो करना आया वो नहीं करता, होर ना कम्मां दे विच खचत हो गया। गए गज परेओ कुटुंब कै कांठे रह गयो राम, आए परे धर्म राय कै बीचे तुमा ताम। जैसे रैन परौने उठ चल सैं प्रभात, क्या तू रत्ता गृष्ट स्यों सब फुल्लां की बागात। मेरी मेरी क्या करें, जिन दिया सो प्रभ लोड़। महाराज कहते की मेरी मेरी करना, जिन्हें दिता उन्होंने चेता करया कर। ते ये जेड़े तेरे को लखां ते करोड़ां धन है ना, महाराज कहते छड़ जासी लाख करोड़, लख 84 भ्रमतियां दुलभ जन्म पाए हुए। नानक नाम संभाल तू 100 दिन, धन जोबन अर फुलड़ा। इन्हां दी उम्र बड़ी थोड़ी हुंदी है। धन आउंदा है चला जाता है, जवानी आउंदी दा ते पता लगदा, जांदी दा किसी नूं भी नहीं पता लगता। मेरे मौला तेरी दुनिया फानी देखी, हर चीज यहां की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ेपा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। धन जोबन और फुलड़ा। फुल किन्ने कुछ 2 साल थोड़ा खिड़दा है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30, इदू बाद तो नहीं ना खिड़दा। हजूर कहते नाठी अड़े, जिन्हों पहला प्राहुणा कहा, इत्थे नाठी कह दिता। पुंछ के इलाके किसी घर मेहमान आया, बच्चा गली च खेडन आया, तुसी पुछो बच्चे तुहाडे घर कौन आया, वो छोटा जिहा बच्चा कहेगा नाठी आया है। तुसी कहोगे नाठी क्यों कहिंदे, उन्होंने पूछिए भी तुसी नाठी क्यों कहिंदे,
वो कहते जिहड़ा आया तो भलके नੱਠ जाना, फिर वो नੱਠ ही है ना। महाराज सानू कहते तुसी नाठी हो, नੱਠਣ वाले हो, प्राहुणे हो, सदा टिकण वाले नहीं। नाठी अड़े दिन चार पब्बन केरे पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार रंग मान लै प्यारियां जा जोबन नाव हुला। जदों तक सोहनी जवानी है उदों तक नाम जप लै, बाणी पढ़ लै, बड़ेपे च ओनी नहीं पढ़ी जाती। दिन थोड़े थके भया पुराना चोला, फिर क्या सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। हाँ पी वंजा डोमणी, इनू डोमणी नहीं कहना, अनर्थ हो जाएगा। डड्डे नू एक नुकता है, एक नुकता होवे, ये डड्डा दद्दे दा लखायक है। डो मणी, दो मणी, डबल माइंडड, दुबदा दा शिकार। डूमणी मरासन, कबुद्ध डूमणी कुदया कुसायन, पर निंदा घट चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थी है जां चारे बैठियां। उत्थे दो नुकते ने, वो मरासन के अर्थां विच लैना। इत्थे दो मनी, ट्रैफिक के सर्वे कहते ने शराबी ड्राइवरां ने उन्ने एक्सीडेंट नहीं किए जिन्हें डबल माइंडड ड्राइवरां ने ओवरटेक करा कि ना करा, यको तक्की करदे आ। लैफ्ट साइड वहीकल जा रहा है, उन्होंने ओवरटेक करना है, और राइट साइड तो सामने उन्नी देर में दूसरा आ जाता है, डिसाइड ही नहीं कर पाता, और फलस्वरूप सीधी टक्कर हो जाती है जान माल का। जिस तरह सड़कों ते डबल माइंडड ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं, इस तरह दुबदा के शिकार व्यक्ति के अंदर भी एक्सीडेंट होंगे ने। इसलिए महाराज ने लिखा दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाए। अंदर भी दुबदा नहीं खड़ी होने देनी। हाँ भी वंजा मैं भी टुर जाना है, दो मना वाली ने, दुचित्ती ने, थोड़ा जा संसार वाल, थोड़ा जा निरंकार वाल, एक पौड़ी ऊपर एक थले, कोठे ते कदी भी नहीं चढ़िया जाना। हाँ भी वंजा डोमणी रोवा झीणी बाण, की ना सुनेंदी गोरीए आपन कन्नी सोए, लगी आवे सौरे नित ना पईए होए। तेरे कोल कईयां कुड़ियां दे विआह होए ने, वो सौरे टुर गईयां ने, एक दिन तेरा भी होना। तेरे कोलों कई अर्थियां उठ गईयां ने, एक दिन तेरी भी उठ जानी है, पर तू इस गल नूं अंदर नहीं वसांदा। नानक सुती पई है, पेके घर विच सुती कुड़ीए, इस लोक विच गाफलता दी नींद विच गाफल होई जग्यासू जीव इस्त्रीए, जान विरती सन, तेरे घर नूं ते दिड़े ही चोर सन ला के बैठे ने। फलस्वरूप तू की कीता, गुणा गवाई गंठड़ी ते अवगण चली बन। इत्थे बैठे नहीं रहना, गुणा की सांझ कर। अंत च महाराज बख्शिश कर रहे ने ते कह रहे ने नेचल सच खुदाए एक, सदा थिर रहन वाला एक अकाल पुरख है, खुदाए बंदा अविनाशी। ते खुदा दा बंदा भी नाशवंत नहीं गा, वह भी अविनाशी है। क्यों? वह नाश नहीं हुंदा, वह मरदा नहीं गा। सानू अपने पड़दादे पड़दादे दे पिता दा, पड़दादे दादे दे दादे दा नाम शायद ही तुहाडे चों किसी नूं पता होवे। दादे तक असीं चेता रखने, हद पड़दादे तक भुल जाने आ क्योंकि लोड़ ही नहीं पैंदी। पर गुरमुखो वो महापुरख जिहड़े कई कई सदियां कई कई युग पहला नाम जप गए ने, उन्हां दा नाम अजे तक सारियां नूं चेता है, मरदा नहीं क्योंकि उन्होंने नाम जपिया है। जिहड़े नहीं जपदे महाराज कहंदे आया गया मोया नाम, वो आया सी चला गया, हौली हौली उहदा नाम ही मर गया, भाव लोकां नूं उहदा नाम ही भुल गया। इत्थे महाराज कहंदे ने नेचल एक खुदाए, नेचल सच खुदाए एक, खुदाए बंदा अविनाशी। खुदा दा बंदा भी अविनाशी है, वो नाश नहीं हुंदा। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुरमंत। गुरमंत की है वाहेगुरु, गुरमंत्र है जप हौमे खोई। आओ समाप्ति करिए, एक बारी सारी संगत कृपा करो ते आखो जी वाहेगुरु गुरमंत्र है, वाहेगुरु गुरमंत्र है, वाहेगुरु 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 गुरमंत्र है, वाहेगुरु गुरमंत्र है।
ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ, ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ। ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ, ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।